Okay, now listen carefully. Here, as I told you, Prathamesh, listen. Your doubt is that in just remember one thing. In Java, whenever you allocate the memory using which keyword? New keyword. Whenever you allocate the memory using which keyword? New keyword. Okay, and if you pass this like B is equal to ARR. So in this scenario, there is only one memory allocated. Only one memory is allocated. Look at this. Only one memory is allocated. So the memory 1, then we have 2, then we have a memory number 3, then we have memory 4 and 5. So, so this is what your memory here, and this B will also point to the same memory. Hello, listen. So as I told you, when you allocate a memory for when you allocate the memory for this one, if you pass this object to any other object, so both the variables will point to the same memory. Prathamesh, your doubt is clear. See, whenever you allocate, same thing happen in case of the product class also. In the product class, ARR is equal to new product for 3 products here, and a product B is equal to ARR. Now here this ARR and B both will point to the same memory. No. Data type is important. Data type is important. Clear? Data type is important. Suppose if you have ARR type of the type is product here, you should have the same type for the B also. Then only you can assign this ARR to this B. Clear? If data type is different, then you cannot share the memory. Clear? Then you will get error. Then you will get the error. Okay, Prathamesh. Okay. Now, so here, as I told you, let's start the Eclipse. If we declare two array with the different names and same value, then what about memory allocation? If you use a new keyword 2 times, Komal, if you use the new keyword how many times? 2 times, then you will get 2 memory. Okay, for example, Komal, suppose if you create a memory like this, see, integer ARR equal to new integer, suppose of 5. Similarly here, integer VARR is equal to new integer. Okay, what you said, if you declare two array with the different names and the same value, okay, then you have 5 here. So now if you have a same value, no problem, but two different memories will be there. Because you are using this keyword how many times? 2 times here. You are using this new keyword here how many times? 2 times. Understood? Okay. Okay. So let's open that program. I hope you remember the yesterday's code. So as I told you, so listen, this is your program. See, yesterday one dimension array. So then I told you to take the two classes. See, this is the class 1, array 1, and you have array operation class 2. So in array operation, there are different functions like insert element, display element, search element, sort element. So I'll continue this part. Okay. So first of all, insert element. Come to the main class. In the main array, listen everybody. Okay, in the main class, I created array of size 20. Listen, we created the array of size 20 here. So suppose we have created array of size 20. So this array is created. Okay. So here you have 1, then 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and continue this. Okay. Here you have array like 0, then you have 1, 2, 3, then 4, 5, 6, 7,
8 and continue this. Last index is 19. Last index is 19. Now what I'm doing here, okay, create an object of array operation class. Create an object of array operation class, which is the next class here. Which one is the next class here? Okay, now 1 for insert, 2 for display, 3 for search, 4 for delete, 5 for sort. So as I told you, choice is 1. If choice is 1, then how many elements do you want? How many elements do you want? So I said I want suppose 5 elements. So call the insert array element, pass your array. आता लक्ष द्या काय केलं. Listen everybody. Here I am passing my array and the size. Go to this method. Press the control here. Press the control here and click on the method. So here this ARR. Suppose as I told you, I will change the name BARR. BRR suppose. Okay, B array. Consider this is what B array for some time. And here is what N. Now here this B array will point to the same memory. See, earlier the name was ARR. Right now for this memory the name is BARR. BARR. Okay. I0 0 less than 5. Take the first number, store at 0th position. Take the first number at 0th position. I becomes 1. 1 less than 5. Take the next element at the 1 position. Okay. Then I becomes 2. Okay, I becomes 2. 2 less than 5. Take the next number, store at the second index. Okay, that is 30. Okay, then I becomes 3. 3 less than 5. Take the next number, store at the 11th index 4. 40. Next I becomes 4 here. Okay, 4 less than 5. Store the next number at the next index. So value is 50 here. Then I becomes 5. 5 is not less than 5. Stop the loop. So look at this. Elements are inserted by this class and this method, but still I will get my elements in the main class automatically. I will get my elements to this array automatically. I have a doubt that what if you don't know the array at the time of allocation. So for that we are going to learn the another concept, Prathamesh. If you don't know, like if you remember in the data structure subject, okay, you have a linked list. Similarly in Java we have a collection topic. If you don't know the number of elements, then we can go for a collection topic. Understood, Prathamesh? So as I said, here my array is here. Look at this. Here I inserted the element in another class, but still I will get my elements in the main class variable. Everybody, ये समझ में आया सबको? मैंने क्या बोला कि अगर मैंने यहाँ पे element insert किए BARR को, फिर भी मुझे element ARR में मिल गए. फिर भी मुझे मेरे element ARR के अंदर मिल गए. Understood? Please reply. ठीक है? तो अभी क्या करेंगे? Next is after this. Listen. So then next is, suppose if choice is 2, call your display method. Call the display method. You will get your array here and n is here. So you can display your element. कोणाला doubt असेल तर विचारा. If anybody has any doubt here, please tell me. इथपर्यंत सगळ्यांना समजलंय का? जर कोणाला डाऊट असेल तर विचारा. ठीक आहे. So let's go to the next method. That is a search method here. Case number 3. Case number 3 here and a break. So SYSO enter element to search in array. Enter element to search in the array. So AO dot search data, pass your array, size of element and जो element तुम लोगों को search करना है वो. So element. So instead of taking the extra variable, you can take the element here also. No problem. Next integer. Everybody understood this? Instead of taking one extra variable, for example, element is equal to sc dot next in. तो इससे अच्छा मैं डायरेक्टली यहाँ पे भी एक्सेप्ट कर सकता हूँ. अदरवाइज ऐसे भी लिखा तो भी चलेगा. क्लियर? तो यू कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ लाइन्स. ऐसे लिया तो भी चलेगा. अगर डायरेक्टली इस लाइन को यहाँ पे लिखा तो भी चलेगा. दिस इज ऑल्सो वैलिड. sc डॉट नेक्स्ट इंट. ठीक है, इसको कमेंट करेंगे हम लोग.
कमेंट करेंगे इसको, गो टू सर्च डेटा, द सर्च डेटा, यहाँ पे एलिमेंट आएगा, रिमेंबर दिस। सो पास योर एरे हियर, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड पास द जो नंबर सर्च करना है वो। तो यहाँ पे आने के बाद लेट्स ऐड द लॉजिक फॉर सर्च रिकॉर्ड। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन हो सकते थे, बट जिनको डेटा स्ट्रक्चर मालूम है दे कैन ट्राई विद द लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च। अभी मैं फिलहाल सिर्फ लीनियर सर्च ऐड करता हूँ। ओके, राइट नाउ आई विल ऐड ओनली लीनियर सर्च हियर, SYSO 1 फॉर linear search /n 2 for binary search। बट जिनको बाइनरी सर्च नहीं मालूम है, डोंट वरी, आफ्टर डेटा स्ट्रक्चर्स, डेटा स्ट्रक्चर के बाद ये समझ में आएगा बाइनरी सर्च क्या होता है। राइट नाउ आई एम जस्ट टेलिंग यू लीनियर सर्च, राइट नाउ आई एम टेलिंग यू लीनियर सर्च। ओके, तो यहाँ पे लिख रहा है इंटीजर ch इक्वल टू sc.next इन इफ ch इक्वल टू 1। अगर ch1 है तो क्या लॉजिक लिखना है, देखो, यूज द फॉर लूप, i starts from 0, i less than n, i plus plus, and if error of i इक्वल टू एलिमेंट है, जो एलिमेंट तुम्हें सर्च करना है उसके साथ अगर मैच हो गया तो वी कैन टेक अ वेरिएबल हियर, जिसको हम लोग बोलते हैं बुलियन, विच इज फॉल्स राइट नाउ, b is equal to true, b is equal to true, and break the loop. We are assuming that right now there is no duplicate value. Right now there is a no duplicate value. Okay, remember this. So I starts from 0, 0 less than है 5 से, 0 पे मेरा एलिमेंट है क्या, चेक करो, मुझे सर्च करना है 40। सपोज इफ आई वांट टू सर्च द वैल्यू 40, इसको सर्च करना है, तो सबसे पहले i 0 पे है, तो i यहाँ पे होगा तुम्हारा 0 पे, 0 पे 40 है क्या, देख लो एक बार, नो, देन i becomes 1, 1 लेस देन है 5 से, i is here right now, तो यहाँ पे 40 है क्या, नो, i becomes 2, 2 लेस देन 5, 2 पे 40 है क्या, यहाँ पे 40 है क्या, नो, i becomes 3, 3 लेस देन 5, नेक्स्ट लोकेशन पे 40 है क्या, यस, वी गॉट द 40 हियर। ये देखो यहाँ पे हमारे पास 40 आ गया, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 40 वैल्यू आ गया, ठीक है। ओके, तो b को ट्रू कर दो, लूप को ब्रेक कर दो, b को ट्रू करो और लूप को ब्रेक करो, तो ये क्या है यहाँ पे देखो, सो हियर आई विल रिटर्न b, b क्यों रिटर्न किया मैंने, ट्रू और फॉल्स के लिए, इसको बोलते हैं बुलियन, बुलियन मतलब ट्रू और फॉल्स। इफ यू रिमेंबर इन सी प्रोग्रामिंग हम लोग फ्लैग यूज करते थे, बट जावा के अंदर हमारे पास डेटा टाइप है बुलियन, जिसके अंदर दो ही वैल्यू होते हैं, एक होता है ट्रू, एक होता है फॉल्स। तो हियर आई विल गेट माई वैल्यू इफ, देखो इसको भी शॉर्टकट में लिख सकते हैं हम लोग कम से कम लाइन में। इसका मतलब हुआ कि अगर वहां से वैल्यू ट्रू आ गया, देखो अगर नहीं समझ में आया तो बताओ, इसका मतलब क्या है, इसको सर्च को कॉल किया, ये उधर गया, उसने डेटा चेक किया, अगर ट्रू आ गया तो यू कैन से दैट एलिमेंट फाउंड, एल्स एलिमेंट नॉट फाउंड, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, एलिमेंट फाउंड, अदरवाइज एलिमेंट नॉट फाउंड, रिमेंबर दिस। अगर ये डेटा मैच हो गया तो वी कैन से दैट एलिमेंट फाउंड, अदरवाइज एलिमेंट नॉट फाउंड, एलिमेंट फाउंड अदरवाइज एलिमेंट नॉट फाउंड, ठीक है। हे कळलं का सगळ्यांना, प्लीज रिप्लाय, अदरवाइज आई कैन राइट लाइक दिस, b इज इक्वल टू एओ डॉट सर्च डेटा, ये जो कोड लिखा है ना हमने यहाँ पे, इसको यहाँ पे लिखो ऐसे, अगर वहां से ट्रू आएगा तो ये प्रिंट होगा, नहीं तो ये वाला प्रिंट होगा, अंडरस्टूड, प्लीज रिप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट इज ये बाइनरी सर्च क्या होता है ना, तो ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, जिनका डेटा स्ट्रक्चर हो गया दे कैन स्टार्ट विद द बाइनरी सर्च, नो प्रॉब्लम। जिनको बाइनरी सर्च आता है उन्होंने यहाँ पे इसको केस 2 में बाइनरी सर्च करो, ठीक है। अभी ये हो गया एग्जाम्पल, अगर मेरे पास यूनिक वैल्यू है तो, अगर मेरे पास डुप्लीकेट वैल्यू होगा तो हम लोग अलग लॉजिक यूज करेंगे, हम लोग काउंटर यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, काउंटर। तो काउंटर अगर 2 हो गया, 3 हो गया तो वो काउंटर रिटर्न करो,
and we can print here the element found how many times, like 2 times, 3 times, or 4 times. Understood? Okay. So enter the new value and ठीक है, new location, or you can say new position. तो अभी क्या करना है हमें? एंटर द न्यू वैल्यू. एंटर द न्यू वैल्यू मतलब क्या कि ये मेरा जो एरे, अगर मैंने बोला यहाँ पे मुझे सपोज हियर आई हैव दिस एरे हियर, 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, so this is my array here, and 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये कहां तक आएगा? 90 तक. इंसर्ट कर दो एलिमेंट 10 20 30 40 50 एंड कंटिन्यू दिस. अगर हमने बोला कि हमें यहाँ पे न्यू वैल्यू इंसर्ट करना है 15 और उसका पोजीशन है सपोज 2. ओके, मतलब यहाँ पे मुझे नया वैल्यू इंसर्ट करना है 15 यहाँ पे. तो अगर यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो ये आगे वाले जो वैल्यू है इनको शिफ्ट करना पड़ेगा. जैसे कि ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, ये शिफ्ट होगा इधर, ये वाला वैल्यू शिफ्ट हो जाएगा इधर, और ये वाला वैल्यू शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे. अंडरस्टूड? सो आफ्टर दिस यू विल गेट द लोकेशन फॉर द न्यू वैल्यू और न्यू इलेमेंट. हे लॉजिक कळलं सगळ्यांना? शिफ्ट ऑल द वैल्यूज टूवर्ड्स द राइट साइड, ऑल द वैल्यू टूवर्ड द राइट साइड. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें नया इंसर्ट करना है ना वैल्यू, यहाँ पे हमें नया वैल्यू इंसर्ट करना है. तो कैसे करेंगे? देखो, ओके लिसन, if you want to insert a new value here, if you want to insert the new value here, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? देखो, सबसे पहले यहाँ पे आके एंटर द न्यू वैल्यू एंड लोकेशन, राइट? तो मैंने बोला न्यू वैल्यू के लिए न्यू वैल्यू इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट इंट. तो मैंने बोला नया वैल्यू मुझे इंसर्ट करना है, टेक एग्जांपल 15, और इंटीजर पोजीशन इज इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट इंट. कौन सा पोजीशन बोला मैंने? सेकेंड पोजीशन. तो हमें क्या करना पड़ेगा? लेट्स कॉल द मेथड हियर. पब्लिक void insert new value, integer arr, integer यहाँ पे आएगा arr, उसके बाद कितने एलिमेंट है फिलहाल उसके अंदर, उसके बाद नया वैल्यू का लोकेशन, और नया वैल्यू कौन सा है? वो न्यू एलिमेंट एंड इंटीजर एलओसी. ओके, तो देखो सबसे पहले एरे पास कर दो, उसके बाद कौन सा एलिमेंट, कितने एलिमेंट है वो यहाँ पे बताओ. ओके, सो देन कौन सा एलिमेंट इंसर्ट करना है और कौन से लोकेशन पे इंसर्ट करना है. ठीक है, सो टेक अ फॉर लूप हियर, i इज इक्वल टू एलओसी, मतलब सॉरी नहीं, एक मिनट, n माइनस 1, i जब तक ग्रेटर देन होगा इक्वल टू कहां से? लोकेशन से, तब तक i को करूंगा माइनस माइनस. अभी इस लॉजिक का मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे कुछ कोड लिखना पड़ेगा. arr के i प्लस 1 पे arr का i एलिमेंट शिफ्ट कर दो. सो सुनो क्या हुआ, i इक्वल टू 5 माइनस 1 मतलब 4, मतलब i इज एट दिस इंडेक्स. ओके, याद रखो मैंने क्या बोला.
आई कहाँ पे? 4th इंडेक्स पे है। ओके, तो 4 इज ग्रेटर देन, क्या बोला मैंने, आई इज इक्वल टू 4, 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सेकेंड, ठीक है, आई इज हियर राइट नाउ। ओके, उसके बाद 4 पे है, 4 इज ग्रेटर देन कहाँ से? 2 से, राइट। यहाँ पे लिखता हूं मैं 4 इज ग्रेटर देन 2। ओके, तो 4 वाले वैल्यू को 4 प्लस 1 पे शिफ्ट करो, इस वैल्यू को आगे शिफ्ट कर दो यहाँ पे, उसके बाद माइनस माइनस आई हो गया 3, इसका मतलब आई बिकम्स 3। एक सेकेंड, तो क्या बोला हमने, देखो कि यहाँ पे 4 वाले वैल्यू को 4 प्लस 1 पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है, 4 वाले वैल्यू को 4 प्लस 1 पे शिफ्ट कर दिया, उसके बाद आई 3 हो गया, आई बिकम 3, 3 ग्रेटर देन है कितने से? 2 से, यस, 3 इज ग्रेटर देन 2, यस, देन 3 ग्रेटर देन 2, यस, तो 3 वाला वैल्यू को 3 प्लस 1 पे शिफ्ट करो, दिस वैल्यू यू कैन शिफ्ट टू द नेक्स्ट पोजीशन, आई बिकम्स 2, आई बिकम्स 2, सो फिर से एक बार 30 वैल्यू को आगे शिफ्ट कर दो, आई माइनस माइनस, आई इज राइट नाउ हियर, आई बिकम्स 1, बट 1 ग्रेटर देन 2 से नहीं, तो 1 ग्रेटर देन 2 से नहीं, बट कुछ तो गलत हुआ लॉजिक, क्योंकि मुझे इंसर्ट सेकंड पोजीशन पे करना है, इंडेक्स पे नहीं। सबको समझ में आया? एवरीबडी अंडरस्टूड व्हाट आई सेड? आई वांट टू इंसर्ट द एलिमेंट एट पोजीशन 2, मुझे इंसर्ट करना है पोजीशन 2 पे नए एलिमेंट को, नॉट एट द इंडेक्स 2, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक, एज पर दिस लॉजिक, फिलहाल मेरा आई 1 हो गया, 1 ग्रेटर देन 2 से नहीं है, तो समथिंग इज लाइक रॉन्ग हियर, सो नाउ आई एम यूजिंग आई माइनस 1, लोकेशन -1, तो इसका मतलब होगा कि हाँ ऐसे होगा, करेक्ट। तो 1 इक्वल टू 1, यस मैच हो रहा है, तो आई को शिफ्ट करो आई प्लस 1 पे, ये चला जाएगा आगे, आई माइनस माइनस, नाउ 0 इज ग्रेटर देन 1, नो, स्टॉप द लूप एंड यू कैन डू वन थिंग हियर, एरे के एलओसी के ऊपर, एलओसी मतलब कौन? एलओसी मतलब पोजीशन 2 -1 के ऊपर तुम लोग क्या करो, न्यू एलिमेंट को इंसर्ट कर दो, मतलब 2 -1 मतलब इंडेक्स 1, 2 -1 मतलब इंडेक्स 1 पे न्यू एलिमेंट को इंसर्ट कर दो, यहाँ पे तुम क्या करो, नए एलिमेंट को इंसर्ट कर दो 15 को। अंडरस्टूड? एवरीबडी प्लीज रिप्लाई, ठीक है। हाँ, तो अभी क्या करना है हमें, यहाँ पे हो गया नया एलिमेंट इंसर्ट, यहाँ पे हो गया नया एलिमेंट इंसर्ट। Okay, so this is the way you can like insert the new value in existing array. So, but there is one problem. You have to increase the size of n, because n पहले 5 था, तो अभी n कितना हो गया? 6 हो गया। You can return this n here. Go to main and just take that n here. N is equal to, कौन सा है मेथड वो, ao dot insert new value, इंसर्ट द न्यू वैल्यू, इसको हमने इंसर्ट कर दिया, इसको न्यू एरे दे दो, न्यू वैल्यू दे दो। ओके, सुनो, न्यू वैल्यू भी दे दिया, न्यू एलिमेंट, और ये आ गया पोजीशन। ओके, तो ये न्यू एलिमेंट कौन है, मतलब न्यू वैल्यू, सॉरी, तो ये होगा n, और ये आएगा न्यू वैल्यू, ये आएगा न्यू वैल्यू, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नया वैल्यू इंसर्ट कर दिया, नया वैल्यू यहाँ पे हमने इंसर्ट कर दिया, रिमेंबर दिस। ओके, तो और इससे हमें n रिटर्न कर दिया, n मतलब क्या, मे बी योर n इज, अभी n कितना हो गया, 6 हो गया, बिकॉज अर्लियर n वॉज 5, नाउ योर n बिकम 6, हे समझ लगा सगळ्यांना? दिस टाइम नाउ योर n बिकम्स 6, इसके पहले n तुम्हारा 5 था, तो अभी n 6 हो गया, क्लियर, क्योंकि इस मेथड ने मुझे नया n रिटर्न किया, अंडरस्टूड? फ्रॉम दिस मेथड आई गॉट द न्यू वैल्यू ऑफ n, फ्रॉम दिस मेथड आई गॉट न्यू वैल्यू ऑफ n। ओके, हाँ, तो अभी क्या करेंगे, यहाँ तक हो गया इंसर्ट का कोड,
इसके बाद अभी करना है केस 4 ब्रेक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, SYSO एंटर द लोकेशन टू डिलीट द वैल्यू। जैसे कि अभी अगर मैंने बोला आई वांट टू इंसर्ट LOC इक्वल टू ST डॉट नेक्स्ट int, सपोज इफ आई वांट टू इंसर्ट अ वैल्यू LOC पोजीशन दिया क्या, ठीक है, तो इसको कॉमनली दिया तो भी चलेगा, ठीक है। So you can take the position to insert the value. Take the position to delete the value. अभी डुप्लीकेट हो गया ना, इसको डिलीट करो यहाँ से, ठीक है। तो हमने क्या किया, एंटर द लोकेशन टू डिलीट द वैल्यू। मैंने बोला मुझे थर्ड वैल्यू डिलीट करना है। थर्ड डिलीट करना है मतलब कौन, थर्ड डिलीट करना है मतलब कौन, ये वाला वैल्यू डिलीट करना है, देखो ये, इसको डिलीट करना है, ठीक है। इसको अगर डिलीट करना है तो ये आगे वाले वैल्यू को पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा। इसको डिलीट करना है तो ये आगे वैल्यू को पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा। इसको डिलीट करेंगे और ये आगे वाले वैल्यूज को इधर शिफ्ट करेंगे। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, देखो देखो इस टाइप के कोड्स बहुत इंपॉर्टेंट है इन फ्यूचर, व्हेनेवर यू हैव सम लॉजिकल प्रोग्रामिंग, और इंटरव्यू में भी इस टाइप के कोड तुम्हें काम में आते हैं, याद रखो, ठीक है। अदरवाइज मैंने बहुत लोगों को ये ऑलरेडी डेटा स्ट्रक्चर में भी बताया है, सी में भी बताया, बट फिर भी एक बार जावा में रिपीट करवाता हूं मैं, क्योंकि दिस कोड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, रिमेंबर दिस। तो एंटर लोकेशन टू डिलीट द, एंटर द लोकेशन टू डिलीट द वैल्यू, मैंने बोला थर्ड पोजीशन डिलीट करना है, तो यहाँ पे AO डॉट डिलीट डेटा, इसको एरे पास कर दो, नंबर ऑफ एलिमेंट पास कर दो, और जो वैल्यू डिलीट करना है उसका पोजीशन पास कर दो। गो टू डिलीट डेटा, गो टू डिलीट डेटा, पब्लिक वॉइड डिलीट द डेटा, इंटीजर ARR, integer n, integer ARR, integer n, integer ARR, integer n, उसके बाद जिसको डिलीट करना है वो पोजीशन यहाँ पे, ओके। सो element is equal to ARR of position -1। तो मैंने क्या किया, सपोज इफ आई वांट टू डिलीट द एलिमेंट फ्रॉम द पोजीशन नंबर 3, इसका मतलब इंडेक्स होगा उसका 2, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेकेंड इंडेक्स को वैल्यू को एक वेरिएबल में मैंने कॉपी कर लिया। तो कौन सा वैल्यू, देखो कौन सा वैल्यू यहाँ पे कॉपी कर दिया, एक वेरिएबल के अंदर यहाँ पे, ठीक है, इसको मैंने कॉपी कर दिया एक वेरिएबल के अंदर, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी हमें क्या करना है, इस वैल्यू को हमने कॉपी कर दिया यहाँ पे, अभी ये नेक्स्ट वाला वैल्यू इधर शिफ्ट करना है, कैसे करेंगे, इसके लिए हमें एक लॉजिक लिखना पड़ेगा, फॉर लूप I इज इक्वल टू, हे बघा एकदम कॉन्सन्ट्रेशन इकडेच ठेवा, तरच लेक्चर कळेल। ज्याला कोणाला कन्फ्युजन होतंय किंवा जर थोडं जरी तुम्ही डिस्टर्ब झाले, ओके, बिकॉज ऑफ द लाईक करंट ऍटमॉस्फिअर, यू आर ऍट युअर होम राईट नाउ, क्लिअर, तर लिंक लगेच ब्रेक होईल, तुम्हाला नाही समजणार, प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक आहे। सो प्लीज, ओके, लेक्चर मध्ये कॉन्सन्ट्रेशन ठेवा, ठीक आहे। सो एज आई टोल्ड यू कि आई वांट टू डिलीट द एलिमेंट फ्रॉम दिस पोजीशन, पोजीशन इज 2, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, इंडेक्स होगा इसका 2 - 1, इसका मतलब पोजीशन 2 होगा तो, पोजीशन 2 होगा तो इंडेक्स 1 होगा, इंडेक्स क्या होगा, चलो पोजीशन 3 है, सॉरी, सो 3 - 1 मतलब 2, तो यहाँ पे मैंने आई को शिफ्ट कर दिया पहले यहाँ पे। अभी क्या करना है, इसको तो निकाल दिया बाहर, ये नेक्स्ट वैल्यू को इधर डालना है हमें पीछे, राइट। सो हियर जब तक आई इज लेस देन पोजीशन, तब तक आई प्लस प्लस, एंड ARR ऑफ आई इज इक्वल टू ARR ऑफ आई प्लस, इसका मतलब क्या हुआ कि आई प्लस 1 मतलब ये आई प्लस 1, सो दिस वैल्यू यू हैव टू शिफ्ट हियर, then I plus plus again, so I was 2, now I becomes 3, so 3 is less than, 3 is less than, 3 is less than, ये गलत हुआ, this is wrong, see असं तुम्हाला कळलं पाहिजे कुठे चुकतंय ते, ठीक आहे। so right now here position was wrong, so here n is required here, right,
So 3 is a less than n. 3 is a less than n, right? So then shift the next value 3 plus 1 to this position. So I will move to the next position. So this value you have to shift here. Once again I plus plus, I becomes 4 and your n is already suppose 5. Okay, so then shift the 4 is less than 5. 4 plus 1 means कौन सा value? Next value. Okay, so this value you have to shift here. ये देखो I plus plus, I will move to the next position. I जाएगा आगे यहाँ पे. This is your I here. I becomes 5. 5 is less than 5. No, stop the loop. Stop the loop and decrease the I by 1. N minus minus. So n जो पहले जितना भी था अभी 1 से कम हो गया. And you can return this to the main class. Return your n. Go to main. यहाँ पे n को अपडेट कर दो. अभी डिस्प्ले को बाद में चेक करो तो समझ में आएगा. Understood? Everybody, please reply. Hello, everyone, please reply. ठीक है, तो इसको बिना देखे तुम्हें ट्राई करना है 1 by 1. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन रहेगा, केस आएगा 6. यहाँ पे लिखोगे क्या करना है मालूम है? AO डॉट सॉर्टिंग करके मेथड को कॉल करना है. एरे पास कर दो, एन पास कर दो. बट ये अभी नहीं करूंगा मैं, ये तुम्हें करना है. रुको, सॉर्टिंग के पास आ जाओ. यहाँ पे हमारे पास सॉर्ट नाम का मेथड है सॉर्टिंग. यहाँ पे चॉइस आना चाहिए. 1 फॉर बबल सॉर्ट, 2 फॉर सिलेक्शन सॉर्ट, 3 फॉर इंसर्शन सॉर्ट. अभी सुनो, दिस इज नॉट फॉर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट. जिनका डेटा स्ट्रक्चर हुआ है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, याद रखो. तो क्या करना है? यू हैव टू टेक अ 1 मोर क्लास. एवरीबॉडी लिसन. एरर क्यों है एक बार चेक करने दो. इंसर्ट द न्यू वैल्यू में एरर क्यों है पहले ये चेक करो. मेथड मस्ट रिटर्न द रिजल्ट ऑफ टाइप इंटीजर. अच्छा, रिटर्न एन. हाँ, तो अभी पॉइंट क्या है यहाँ पे? लेट्स टेक अ 1 मोर मेथड. सी, लिसन केयरफुली. दिस इज नॉट फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट. रिमेंबर, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? सॉर्टिंग नाम का एक क्लास ले लो. ओके, सॉर्टिंग नाम का एक क्लास ले लो. इस क्लास के अंदर यहाँ पे मेथड लिखो, पब्लिक वॉइड बबल सॉर्ट. इसको तुम्हारा एरे पास कर दो और एन पास कर दो. सम कोड पब्लिक वॉइड सिलेक्शन सॉर्ट, इसको भी एरे पास कर दो और एन पास कर दो. ओके, पब्लिक वॉइड इंसर्शन sort, again pass your array and n. So here you have to sort your data either using bubble sort, selection sort, insertion sort. How to call this? You can create the object here. I will give you this code. Sorting s is equal to new sorting ठीक है. And then you can add the choice here, SYSO. 1 for bubble sort, 2 for selection sort, 3 for insertion sort, and continue this. समझ में आया ना क्या करना है? Please reply. Everybody understood? Hello everyone, please tell me, understood? Yes or no? And then you are going to call the methods here. S dot bubble sort, S dot selection sort, or S dot insertion sort. So this is not for the first year students. Only those who have done already data structures. Okay. बाकी लोगों ने नॉर्मल सॉर्टिंग करो.
जिनको मैंने सी सिखाया है उन्होंने जस्ट सॉर्ट द डेटा नॉर्मली, डोंट टेक एनी एक्स्ट्रा क्लास हियर, ओके। सो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स क्लियर, प्लीज रिप्लाई। तुम्हें सिर्फ यहाँ पे दो फॉर लूप लेके सॉर्ट करना है जो हमने सी में सीखा था, ठीक है। यस, यू कैन सॉर्ट दिस यूजिंग अ सिंपल मेथड। सो दिस इज कॉल्ड एज एरे ऑपरेशन। तो ये तुम्हारा पहला प्रोग्राम है एरे के ऊपर, ये तुम्हारा फर्स्ट प्रोग्राम है एरे के ऊपर। इसके अलावा जिनका बेसिक वीक है एरे का, जो मैंने बोला है कि सी के बैच में अटेंड करो, उसमें रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। मतलब लॉजिकल प्रोग्रामिंग, ओके, लाइक फाइंड आउट स्मॉलेस्ट ग्रेटर नंबर, ओके। देन उसके बाद सी के लेक्चर्स अटेंड करो, हाँ प्लीज लिसन। Those who all are not good in the basic programming, please attend the C programming lecture. ठीक है, find out minimum maximum number in the array, because for this type of program we have a C programming, okay। ठीक है, तो लॉजिक तो वही होता है, सिर्फ यहाँ पे हम लोग जावा का सिंटैक्स यूज कर रहे हैं फिलहाल। सो इन दिस वे यू हैव टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन। सबसे पहले तुम्हारे पास एक क्लास होगा एरे ऑपरेशन का, इंसर्ट एलिमेंट, डिस्प्ले एलिमेंट, सर्च एलिमेंट, इंसर्ट न्यू वैल्यू, सॉर्टिंग, डिलीट डेटा। ये यहाँ के मेथड्स है। इसको कॉल करने के लिए दिस इज मेनू हियर, 1 फॉर इंसर्ट, 2 फॉर डिस्प्ले, 3 फॉर सर्च वगैरह वगैरह, क्लियर। So if choice is 1, call this, choice is 2, call this, choice is 3, call this, okay। And when you go for a sorting जब कॉल करोगे तो sorting will create a object of sorting class, उसके अंदर मेथड लिखिए बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, ऐसे, ठीक है। समजलं का सगळ्यांना, प्लीज रिप्लाय।